Good morning, student. Today I am going to start worksheet 3 of chapter Perimeter and Area. Worksheet 3 is related to area of a parallelogram. First of all, what is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel. The opposite sides of a parallelogram are also equal. Okay? See the figure. This is a parallelogram in which this side and this side are equal to each other and parallel to each other. Similarly, this side and this side is equal to each other and parallel to each other. Hence, we can say that this figure is a parallelogram. पैरेललोग्राम का मतलब होता है आमने सामने का अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा लेंथ में और पैरेलल भी होगा। उसी प्रकार ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट कैसे होता है। स्टेप 1, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम PQRS. कंसीडर PQ as base. Draw an altitude ST. It means ST perpendicular to PQ. Okay. In a step 2, cut the triangle SPT. इस ट्रायंगल को यानी इस ट्रायंगल को हम कट करके यहां से यहां ले आएंगे, यहां। ओके, कट द ट्रायंगल SPT एंड ज्वाइन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम ज्वाइन करेंगे यहां पर, सीधे उठा करके हम यहां पर ले आएंगे। सी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस फिगर, आफ्टर ज्वाइनिंग दिस फिगर इट बिकम्स, after joining this figure is obtained here, the figure obtained now is a rectangle. इधर का जो पोर्शन था वो कट करके यहाँ पर आ गया और वो किस तरह से दिख रहा है, एक रेक्टेंगल in which SR is the length and ST is the breadth. Okay? इस पोर्शन को हम काट करके यहाँ ले आएंगे और वो फिगर बन करके इस तरह का तैयार हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ओके, PQRS। इस फिगर का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सी दिस फिगर। Area of parallelogram PQRS is equal to area of rectangle. Okay. Area of rectangle SRT dash T. SRT dash T. As we know that area of rectangle is equal to length into breadth, where length is SR and breadth is ST. SR is the length of rectangle and ST is the breadth of the rectangle. Length into breadth.
SR विच इज इक्वल टू PQ। जैसा कि फिगर में आप देखिए SR विच इज इक्वल टू PQ। ओके, तो हमने SR के जगह में PQ लिखा और ST को हमने उसी तरह से रहने दिया, तो PQ इंटू ST। PQ हमने कंसीडर किया था बेस के रूप में, तो PQ को हमने बेस लिखा और ST जो फिगर में था वो एल्टीट्यूड था। सी हियर, PQ is the base but ST is the altitude, it means height perpendicular, so PQ into ST, तो PQ को हमने बेस लिख दिया और ST को हमने एल्टीट्यूड लिख दिया। इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यानी हम लोगों ने यह सीखा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, लेट अस प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन related to area of parallelogram. Worksheet 3. We will consider question number 1. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करें। One side of a parallelogram is 14 centimeter. Its distance from the opposite side is 16.5 centimeter. Find the area of a parallelogram. As we have discussed earlier, in a parallelogram, one side is treated as base and perpendicular. It means distance between two parallel sides is known as altitude. Here, one side of a parallelogram is 14 centimeter. It means base is given of a parallelogram. Its distance from the opposite sides, it means altitude, it means height, is given 16.5 centimeter. Find the area of a parallelogram. So we will write here base of a parallelogram is equal to 14 centimeter. Altitude is equal to 16.5 centimeter. Then area of parallelogram, as you know that base into altitude. हम लोगों ने देखा कि हम लोग बेस इंटू एल्टीट्यूड कैसे निकालें, कैसे फॉर्मूला बनता है, ये हम लोग सीखे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और मैथ्स बनाने के लिए हमें बेस चाहिए और एल्टीट्यूड चाहिए, जो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। After multiplication, we get 231 centimeter square. Therefore, answer is 231 centimeter square. Hence, area of parallelogram is equal to 231 centimeter square. Question number 4 की तरफ बढ़ें। The height of a parallelogram is 3 decimeter. If the area is 240 centimeter square, then find the base of parallelogram. पैरेललोग्राम का हाइट 3 डेसीमीटर दिया हुआ है, एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और बेस फाइंड आउट करना है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ डेसीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये मैथ बनाते वक्त ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेसीमीटर और सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं और 3 लिख देते हैं,
और आंसर निकाल देते हैं, और आंसर नहीं फाइंड आउट होता है, फिर सर नहीं निकला, सर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सी, जो फाइंड आउट करना है उसे हम x मान लेंगे, तो लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर। ओके, तो बेस को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। हाइट इज गिवन 3 डेसीमीटर। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 30 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे होंगे कि दोनों का यूनिट अब सेम हो चुका है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और एरिया के नीचे हम इम्प्लाई का साइन लिख करके एरिया के नीचे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, बेस को हमने x माना था, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर को 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इधर आकर के डिवाइड के रूप में ट्रीट होगा, इज इक्वल टू x। सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 एंड x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Hence, base of a parallelogram is equal to 8 centimeter. Okay? Thank you.